چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہیں سے بھی مداخلت ناقابل قبول ہونی چاہیے. جب سے چیف جسٹس بنا ہوں ایک بھی مداخلت کی شکایت موصول نہیں ہوئی. حالات بہتر ہوتے اگر عدلیہ میں اندرونی مداخلت نہ ہوتی. کیسے چیف جسٹس کسی جج کو فون کر کے کہہ سکتا ہے کہ فیصلہ اس طرح کریں؟ Had made it clear the very first day, I will never accept any interference from any source. And there has not been a single complaint since my assumption of this office to me or to the Registrar of the Supreme Court. We are now dealing with a past transaction. There is or has been or may be interference from within. I would say any kind of interference from any source. But can a Chief Justice call a judge and say, decide a case in this manner? You should raise your finger to us as well. If you want a true independent court, then the civil judge in Makran should be as powerful as the Chief Justice of Pakistan. How dare the Chief Justice of Pakistan interfere in his working? When we mandate the role of intelligence agencies by constituting JITs, which are not provided for any law other than ATC laws, we undermine the independence of the judiciary. Interference of any kind, from any source, any phone call, that should also be equally for a judge, civil judge, maybe that's more fearful than some. We are focusing on one particular thing on the executive. We should also call about self-accountability within the judiciary. Registrar calls judges. I mean, shall be called for witness from among the lawyers? How many registrars have called judges to do what? There's another interference in the judiciary. موجودہ حکومت نے ریویو پٹیشن واپس لے لی، پھر قانون سازی کیوں نہیں کر رہے؟ جسٹس اطہر من اللہ نے دھرنا کمیشن کا ذکر کیا. کیا دنیا کو پتہ نہیں اس وقت پاکستان کو کون چلا رہا تھا؟ میں نے لکھ کر دیا، فیض حمید اس کے پیچھے ہیں. Opinion versus legislation. If the allegation is there, but there also must not be interference from within. اب آپ legislation کر ہی نہیں رہے. آپ نے بھی withdraw کر لی ہے ریویو پٹیشن اس موجودہ حکومت میں، ویری گڈ، بٹ legislation پھر آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کریں legislation. ہر انٹیلیجنس ایجنسی میں بھی دیکھیں اپنا طریقہ کار، اچھے لوگ بھی ہوں گے، برے لوگ بھی ہوں گے، ہر جگہ اچھے برے ہوتے ہیں. کم از کم اس کو پتا ہو جائے گا نا کہ یار یہ میں کر سکتا ہوں یا میں نہیں کر سکتا ہوں. دیٹ از اے بگننگ. شروع کر لیں. جیسے اطہر من اللہ صاحب نے وہ جو کمیشن کا ذکر کیا دھرنا والا، میں خود کیا نہیں کر سکتا تھا؟ آپ کے خیال میں آپ کو، ہمیں دنیا کو نہیں پتا تھا پاکستان کو چلا کون رہا تھا اس وقت، مگر آپ لوگوں نے ان کو بچانا تھا یا نہیں بچانا تھا. میں خود یہ کام نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے کمیشن کمیونٹی کمیشن کے پاس بھیجنا چاہیے. اس لیے نہیں کیا کہ کوئی میری ذات پہ نہ انگلی اٹھائے، کیونکہ دیکھیے میں نے لکھ کر کے دیا تھا کہ جنرل فیض حمید از بیہائنڈ اٹ. آئی ہیڈ ڈسکوالیفائڈ مائی سیلف، دیٹس وائی آئی لیفٹ اٹ ٹو دا گورنمنٹ. اس سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہے. اطہر صاحب کی ایک موقف ہے کہ لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے، مگر چلیں شاید نہ بھی ضرورت ہو، مگر جب لوگ پٹری سے ہٹ جاتے ہیں تب لیجسلیشن کی ضرورت ہوتی ہے نا. اگر آپ ججز صحیح کام کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کوڈ آف کنڈکٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. لکھا اس لیے جاتا ہے کہ لوگ اس پہ پابند رہیں. ہم تو چاہ رہے ہیں پارلیمان کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں. جب تک پارلیمان نہیں مضبوط بنے گی دوسری طاقتیں مضبوط بنتی جائیں گی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو کہا دیگر ہائی کورٹس نے بھی اس کی توثیق کی. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے ساتھ جو ہوا اس کی وجہ سے جج اس مسئلے کو رپورٹ کرتے ہوئے خوف زدہ ہیں. The state becomes the aggressor against a judge. That is what all the high courts are highlighting. And that is a serious matter. The High Court of Lahore is endorsing what the Islamabad High Court has said. It is a continuing, and we all know that it is happening and it has happened. And the judges, they fear reporting because what has happened to a judge of the Islamabad High Court, his personal data, which cannot be accessed by a private person, was put on the social media. Yes. That is an intimidation. That is what affects a judge. My lord is on the bench. 2.5 hours of Judicial Commission's meeting. Each one of them was discussed. Even his green card was mentioned. And he was opposed by the judges from within and from outside because he was independent. The state is to protect the judges and independence of judiciary. 2018 میں جو malicious campaigns
but that is part of our job. We are under an oath. We have never cared about it. मैंने अपना कभी भी नहीं कहा. But when the children's and the wives and family members data is stolen from the government departments, the immigration and NADRA, the presumption and entire onus is on the state. You cannot just make a statement that it is shameful. It is difficult in this country to speak the truth. Those brave enough who speak the truth, there are judges we know जिनको सिर्फ कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा फलां जगह में पढ़ता है, and it's the state which is doing it. जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि जब से हमने नोटिस लिया हमारे 2 बेंच के मेंबरान को टारगेट किया गया. ये मुदाखलत नहीं है, 2 जजेस को थ्रेट है. हाई कोर्ट के जजेस को तो छोड़ दें, उन्होंने एक शिकायत की है जिस पर उनका जो हश्र हुआ. हमने नोटिस लिया तो हमारे साथ क्या हो रहा है? Interference. You see, since we have taken this notice, especially 2 of our learned members of the bench have been targeted. This is not interference. This is a threat to the 2 judges. मैं उसी को ही रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ. आप देखिए, शेमफुल है, देखिए एक डिस्गस्टिंग है, अनएक्सेप्टेबल. और जी साहब जरा सुनिए, हाई कोर्ट के जजेस को तो छोड़ दें कि उन्होंने एक शिकायत की है. शिकायत तो जो उनका अशर हुआ है, हमने जो नोटिस लिया, हमारे साथ क्या हो रहा है? क्या इस तरीके से इंडिपेंडेंस हो सकती है? क्या आप मेंबर के पर्सनल इस पे जजमेंट आ चुकी है? हम एक जजमेंट और देते तो क्या होगा? बिल्कुल. अगर इसी तरह होना, हम 10 जजमेंट और देते हैं. जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, दरवाजे खोलने वालों के खिलाफ मिसकंडक्ट का केस होना चाहिए. निज़ाम को मजबूत होना चाहिए. निज़ाम से बिगाड़ ख़त्म करना है. ये कैसी रियासत है, ये कैसा कल्चर है कि कहीं रिकॉर्डिंग हो रही है तो कहीं कोई देख रहा है? ये फोन उधर रख दो, इस फोन को उधर रखो, फोन को उधर रख के बात करो. कमरे में नहीं बैठो, उस कमरे में बाहर निकल के बात करो. Somebody is watching me, recording me. What is this? ये क्या हो रहा है? What sort of a culture are we running here? Is this a state? Now we have this opportunity today in this case to settle the score and fix the matter. So we can start off with the external pressures, we can come down to internal pressures, but we have to deal with it. आज तक के काम में I never received any. There has been no interference in the work that I've done so far. But this is telling us that there is something happening somewhere. दरवाजे खोलने वाले को तो मिसकॉन्डक्ट में पकड़े ना आप. दरवाजा जो खोलेगा मिसकॉन्डक्ट में जाएगा. वो तो बात सीधी हो गई. सवाल ये है कि देखें, ये भी समझना चाहिए कि माय लॉर्ड इज अ वेरी करेजियस मैन. फिर मेरे जैसे भी होते हैं सिस्टम में. इतना करेजियस नहीं भी कोई होता. सिस्टम होना चाहिए, उसको खड़ा हो जाए उसके साथ. सो दैट्स व्हाई सिस्टम इज रिक्वायर्ड. सिविल जज को पता हो कि कुछ बात हो और सारा जुडिशरी साथ सिस्टम खड़ा हो जाएगा, वो देखें उसको कैसे चीते की तरह काम करेगा. लेकिन अगर उसको पता है वो अकेला है, then he will not do it. Lest future में जाके हमें भी लोग कहें कि हम complicit थे. कर लेना, आज खत्म करें, आज खत्म कर देते हैं. complicity खत्म करते हैं, नहीं होगी internal complicity आज के बाद. यही तो करने बैठे हैं. कल को I don't want future generations say this bench was also complicit. हम करें ना कि अगर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के इंटरफेयर नहीं करते तो their matter should be taken up for misconduct. करें ना, अपना सिस्टम हम बनाएं. हम आप पे तो डिपेंडेंट, आपने तो कुछ नहीं किया, ना लेजिस्लेचर ने कुछ किया, ना एग्जीक्यूटिव ने कुछ किया. हम अपना घर तो ठीक कर लें. पार्लियामेंट कैन नॉट डू एवरीथिंग जो हम समझ रहे हैं. सिविल जज कभी चिट्ठी लिख सकता है चीफ जस्टिस को कि जी मुझे थ्रेट आई थी, तो फिर कौन उसको एम्पावर करेगा? वी सिटिंग टू डेवलप अ सिस्टम. क्या जजों ने खत लिखकर मिसकंडक्ट किया है? दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल से सवाल कर दिया. कहा, आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हाई कोर्ट के जजों ने मिसकंडक्ट किया है. इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा, अगर किसी ने कहा है तो मैं इसे मुस्तरद करता हूं. Last time when you had a meeting with the Honorable Chief Justice and the Prime Minister, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने कहा 6 जजेस ने मिसकंडक्ट किया. नहीं सर. So नहीं, well, I saw that press conference. You and the एक तो मिसकंडक्ट की तो सवाल ही पैदा होता है. You were sitting there. नहीं, बट ये तो कोई एक सेकंड जरा सुन लीजिएगा. ये सारे जो अभी हाई कोर्ट्स ने नहीं सर, एब्सोल्युटली. ये तो वैसे मैं उसको सुन तो रिजेक्ट कर देता हूं कि ऐसी अगर कोई बात हुई है तो गलत है. आप निकाल लीजिएगा. दिस इज व्हाट यू हैड सेड एंड इट वाज आल्सो मैंने तो नहीं कहा था, बट अगर कहा भी किसी ने था तो मैं उसको रिजेक्ट करता हूं. प्रेजेंट इन दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस. अब सुन, बट मुझे ये तो नहीं सुन तो ले, कोई मिसकंडक्ट. क्या ये सारे हाई कोर्ट्स ने अभी मिसकंडक्ट किया? नहीं सर, मैं तो कह रहा हूं उन्होंने भी नहीं किया. एक सेकंड जरा सुन लीजिएगा. बट मैं इसको एक्सप्लेन तो कर दूं ना. अगर वहाँ पे हुई भी थी ये बात तो वो गलत बात थी. कोई मिसकंडक्ट नहीं था किसी जज का. ये खत लिखना, सारी हाई कोर्ट्स ने भी उसको एंडोर्स किया. मैं मौजूद था. इन हाइंडसाइट शायद नहीं होना चाहिए था, होना ही नहीं चाहिए था बाकी वाले. बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर बात की थी किसी ने, गलत की थी. जजेस और उनके अहल खाना की फोन टैपिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए. बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस ने
सुप्रीम कोर्ट को तजावीज़ में लिखा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस मामले को देखें। शिकायत करने वाला जज अपना बयान हल्फी भी दे। बयान हल्फी देने वाले जज पर जरा नहीं हो सकती। एजेंसियाँ अगर ज़िलई या जजिस के अमूर में मुदाखलत या ब्लैकमेल करें तो तौहीन अदालत कार्रवाई करनी चाहिए। चीफ जस्टिस, सेशन जजेस या कोई जज CCTV हासिल करे जहाँ उसके अमूर में मुदाखलत हुई हो। सेशन जज खुद तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं चलाती तो हाई कोर्ट को रिपोर्ट की जाए। हाई कोर्ट 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देकर फैसला करे। हाई कोर्ट का कोई जज रिपोर्ट करे तो चीफ जस्टिस के नोटिस में लाया जाए। जजों में कोई तकसीम नहीं, सोशल मीडिया और मीडिया पर दिए गए इस तासुर को ज़ाइल किया जाए। जजों के साथ एजेंसियों के अरकान की मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। जजों की शिकायत के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मुस्तकिल सेल कायम किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। लिखा इस खुद नोटिस के हुक्मनामे को सताइश की नज़र से देखते हैं। किसी जज के साथ कोई मुदाखलत हुई है तो वो फौरी बताए। शिकायत पर फौरी कानून के मुताबिक फैसले किए जाएं। एग्जीक्यूटिव और एजेंसियों को इख्तियारात की तकसीम को मद्देनजर रखना चाहिए। आला अदलिया और ज़िला अदलिया के जजों को कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम की ज़रूरत है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आने वाली तजावीज़ मुत्तफ़िक़ा हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तजावीज़ बज़ाहिर मुत्तफ़िक़ा नज़र आ रही हैं। अदालती अहाते में एजेंसीज के नुमाइंदगान का दाखिला बंद होना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को तजावीज़ में मुतालबा कर दिया। लिखा शिकायत खुफिया रखी जाएं। अदलिया के पास हुकूमती इदारों से बात करके तरीक़ाकार तय करने का सुनहरी मौका है। जजेस को एजेंसियों या उनके नुमाइंदगान से मुलाकातें नहीं करनी चाहिए। सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक से दूर रहना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए, हम लोग तो आखिरी हद तक चले जाते हैं, ये कर लो वो कर लो। खबर आपको दें, सेनेटर फैसल वावडा का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को खत। जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड से मुतालिक प्रेस रिलीज रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने जारी की। फैसल वावडा ने लिखा, प्रेस रिलीज के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ग्रीन कार्ड से मुतालिक उस वक्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बता चुके थे। ग्रीन कार्ड से मुतालिक जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतर मिनल्ला के दरमियान खतो खताबत हुई थी। आइन के आर्टिकल 19A के तहत मुझे खतो खताबत की कॉपी फराम की जाए। जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से इस तनाज़े को खत्म करने के लिए आपकी प्रेस रिलीज को सराहता हूं, ये खत का मतन है। खबर आपको दें, सेनेटर फैसल वावडा का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को खत। जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड से मुतालिक प्रेस रिलीज रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने जारी की। प्रेस रिलीज के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ग्रीन कार्ड से मुतालिक उस वक्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बता चुके थे। ग्रीन कार्ड से मुतालिक जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतर मिनल्ला के दरमियान खतो खताबत हुई थी। आइन के आर्टिकल 19A के तहत मुझे खतो खताबत की कॉपी फराम की जाए। जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से उस तनाज़े को खत्म करने के लिए आपकी प्रेस रिलीज को सराहता हूं। परवेज इलाही को घर ना पहुंचाने और गिरफ्तार करने पर पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद को पेश होने के लिए हतमी मोहलत दे दी। दौरान समाअत जस्टिस सुल्तान तनवीर ने रिमार्क्स दिए, यह हाई कोर्ट का हुक्म था, परवेज इलाही को गिरफ्तार ना किया जाए। क्या IG खुद को अदालत से भी ताकतवर समझता है? वकील सरकार ने अदालत को बताया IG इस्लामाबाद तब्दील हो चुके हैं। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने रिमार्क्स दिए, अगर वो तब्दील भी हुए हैं तो मतलब ये नहीं इस केस से बरी उज़्ज़िमा हो गए। IG इस्लामाबाद मामले को आसान ले रहे हैं, उन्हें इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने अहमद कैसरा इलाही की दरखास्त पर समाअत की। निकाह केस में सजा के खिलाफ पानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने जज शाहरुख अर्जुमंद पर अदम एतमाद और केस मुंतकली के लिए खावर मानिका की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा गया है आइंदा समाअत पर दलाइल ना दिए गए तो केस का फैसला सुना दिया जाएगा। अदालत ने खावर मानिका की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत 8 मई तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को जहर देने के खदशे के बायस मेडिकल चेकअप की दरखास्त निपटा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दौरान समाअत इस्तफसार किया कि क्या बुशरा बीबी के टेस्ट कर लिए गए। स्टेट काउंसिल अब्दुल रहमान ने जवाब दिया, बुशरा बीबी के शिफा अस्पताल से टेस्ट करवाए गए। बुशरा बीबी के टेस्ट डॉक्टर आसिम यूसुफ की निगरानी में करवाए गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा, क्या बुशरा बीबी ठीक हैं? जहर से मुताल्लिक क्या है? स्टेट काउंसिल ने बताया, जी वो बिल्कुल ठीक है, जहर के कोई असरात नहीं पाए गए। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, बुशरा बीबी खुद अदालत में पेश होकर ब्रीफ करना चाहती हैं। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने करार दिया, बुशरा बीबी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ।
کراچی کے علاقے میٹھا در میں سلنڈر پھٹنے سے دکان میں دھماکہ ہو گیا، ایک شخص جاں بحق اور 6 افراد زخمی ہوئے۔ اس بارے میں مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے افضل۔ میٹھا در کے علاقے میں کراچی چیمبر آف کامرس کی عمارت کے قریب ایک دکان کے اندر دھماکہ ہوا تھا۔ امدادی ٹیمیں یہاں پر پہنچی ہیں اور ریسکیو کا عمل ہے وہ جاری ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ریسکیو 122 کے ڈی جی ڈاکٹر عابد صاحب۔ اس وقت تک 6 کے قریب زخمی ہیں جو یہاں سے نیئر بائی ہاسپٹلز میں شفٹ کیے گئے۔ ایک ڈیڈ باڈی ریکور ہوئی ہے۔ سرچ آپریشن چل رہا ہے اور اندر بہت زیادہ اسموک بہت زیادہ ہے، ٹیمز کام کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے پولیس حکام کے ساتھ بھی ہماری بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ٹیموں کو بھی یہاں پر بلایا ہے تاکہ اس سے دھماکے کی مزید جانچ کی جائے۔ سر دست یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو سلنڈر ہے اس کے دھماکہ ہوا ہے، اس کے نتیجے کے اندر 6 افراد اس میں زخمی، جبکہ ایک شخص کی جو ہے وہ لاش ملبے سے نکالی گئی ہے۔ ضابطے کی کارروائی کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جی، اپر چترال کے نواحی گاؤں فیض آباد کا واحد رابطہ پل برفانی تودے کی زد میں آ کر ٹوٹ گیا۔ مقامی لوگوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے، غذائی قلت کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں نذیر حسین سے۔ جی، اپر چترال کے انتہائی درختادہ اور پسماندہ گاؤں فیض آباد انچی پل کو دوسرے علاقوں سے ملانے والا واحد پل برفانی تودے کے زد میں آ کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے درجنوں طالبہ و طلبات سمیت مقامی لوگوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے پل کے ٹوٹنے سے فیض آباد یرخون میں غذائی قلت پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ علاقہ ماکینون نے متعلقہ حکام و منتخب نمائندوں سے مطالبہ کیا ہے کہ پل کی مرمت کا کام فوری شروع کیا جائے تاکہ بچوں کی فلاحی متاثر نہ ہو۔ جی، اور اب بات کریں گے مدینہ منورہ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی، زائرین دعائیں مانگتے رہے، گنبد خضرا پر روح پرور مناظر سے بھی لطف اندوز ہوتے رہے۔ موسلادھار بارش سے جہاں موسم خوشگوار ہوا، وہیں وادی میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، ٹریفک کا نظام متاثر ہوا، متعدد گاڑیاں بہہ گئیں، شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔